My name is Shikha Yadav and I am an assistant professor in Access College. Today we are going to discuss about the subject that is your digital electronic and computer organization, which is your part of your BCA course. So let's start with our first subject name in itself. We can see from here our subject name is digital electronic and computer organization, which in itself consists of the two different terms. Your first term is digital electronic and second term is computer organization. So firstly we will going to learn about these terms individually. Moving to our first slide, your first part is the digital electronics. So basically digital electronic is a branch of electronics which deals with the digital signals, which means the signals which can be generated by using the electronic circuits which are digitally in nature. यानी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, आपकी ऐसी ब्रांच होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेसिकली डील्स करती है आपके डिजिटल सिग्नल्स के साथ. जितने भी आपके मॉडर्न कंप्यूटर्स होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, वो सारे आपके डिजिटल सिग्नल्स पे वर्क करते हैं. अब इनकी वर्किंग स्टेट्स बेसिकली दो स्टेट्स पे होती है, दैट इज योर 0 एंड 1, जिसमें हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं विद द लो लेवल एंड 1 को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हाई लेवल. Now moving to our next slide, that is the computer organization. As we can see from here also that computer organization basically describe how it does. Basically means कि computer organization से हमें ये पता चलता है कि कैसे हम किसी particular चीज को implement कर सकते हैं. अब अगर हम दोनों terms को combine करें, that is your digital electronic and computer organization. तो ओवरऑल यहाँ से हमारा ये मतलब है कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ये हम पढ़ेंगे कि कैसे हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को या डिफरेंट कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिले. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज योर स्कोप ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन. If we discuss about the scope of digital electronic and computer organization, then there are different areas where we can apply for our future scope. That is your telephone industries, AIR, civil aviation, railways, and many more. Now moving to our next slide, that is overview of the syllabus. Basically in this subjects we are having the 5 units. Your first unit consists of the number system and Boolean algebra number system. Your second unit consists of combinational circuit. Your third unit is all about the sequential circuit. Fourth unit is about register and your fifth unit is about memory organization. Now moving to next slide. Now we will going to discuss in detail about each unit individually. Your first unit is unit number 1, which is number system and Boolean algebra number system. If we talk about the number system, so basically the number systems are the set of values which we use to represent some quantity. We are basically having different type of number system, or we can say the classification of number system, which are basically of 4 types. First one is your decimal, second one is your binary, third is your octal, and fourth one is your hexadecimal. If we see here, there is written the base value, which means in how many digits it's work. Basically decimal work on the 10 digits, that is starting from your 0 to 9. सेकेंड है आपकी बाइनरी जो वर्क करती है आपकी सिर्फ 2 डिजिट्स में, जो होती है आपकी 0 और 1, इसलिए यहाँ पे इसका बेस 2 होता है. नेक्स्ट है आपकी ऑक्टल जिसमें इसका बेस होता है 8, क्योंकि ये आपकी 8 डिजिट्स पे वर्क करती है जो स्टार्ट करती है 0 से लेके 7 तक. और लास्ट है आपकी हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16, जो बेसिकली वर्क करती है 0 से 15, जिसमें हम 0 से 9 को रिप्रेजेंट करते हैं एज इट इज विद द हेल्प ऑफ द डिजिट, एंड रिमेनिंग 5 digits that is from 10 to 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, that is from A to F. Now next topic we will going to discuss in the unit 1 is all about the binary arithmetic and complement. In binary arithmetic हम लोग बेसिक जो अर्थमेटिक्स पढ़ते आए हैं वही हम डिस्कस करेंगे, जैसे बाइनरी डिविजन्स, आपका मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट है इसमें कॉम्प्लीमेंट में हम डिस्कस करेंगे 1's complements, about 2's complement, 9 complement, 10 complement, 7 and 8 complement. नेक्स्ट टॉपिक है आपका बाइनरी कोड्स. बाइनरी कोड्स में हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देखेंगे बाइनरी कोड्स की, जैसे आपके वेटेड कोड होते हैं, नॉन वेटेड कोड होते हैं, कौन से आपके सीक्वेंशियल्स होते हैं, साइक्लिक होते हैं एंड सो ऑन.
नेक्स्ट टॉपिक है आपका बुलियन फंक्शन। बुलियन फंक्शन से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो बेसिकली बुलियन अलजेब्रा आपकी ऐसी फंक्शंस होती है या बुलियन अलजेब्रा के हेल्प से हम किसी भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि बुलियन अलजेब्रा हमारी सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जिसकी हेल्प से हम किसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। और जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन के टाइम भी उसकी फंक्शनैलिटी आपकी चेंज ना हो। डिफरेंट टाइप से एक्सप्रेशंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज योर एसओपी फॉर्म में और पीओएस फॉर्म में, सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में और प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमने क्या बात की कि हम एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के दो तरीके होते हैं यहाँ पे। सबसे पहला बाय यूजिंग सम लॉ, जिसे हम आपके बुलियन पोस्टुलेट्स के अंदर पढ़ेंगे, और सेकंड होता है बाय यूजिंग द के मैप, दैट इज योर कर्नल मैप। Now moving to the next topic here in unit 1, next topic is all about the logic gates. Logic gates are basically the basic building blocks which we use in the digital circuit. अगर different types की logic gates की बात करें, आप basic gates पढ़ेंगे, universal gates पढ़ेंगे and derived gate पढ़ेंगे, जैसे कि and और not, ये आपके basic gates होंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसमें वो आपका कन्वर्जन्स होगा सारे गेट्स का। Now moving to the next slide, that is your unit number 2. Unit number 2 is all about the combinational circuit. If we discuss about the combinational circuit, तो basically combinational circuit आपके ऐसे सर्किट्स होते हैं जिनका आउटपुट डिपेंड करता है उनके प्रेजेंट इनपुट पे। जैसे कि यहाँ से हम ब्लॉक डायग्राम से देख सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है इसमें जो भी आउटपुट जनरेट होगा वो डिपेंड करेगा उसके इनपुट में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं तो दो नंबर को ऐड करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट टाइम में इनपुट्स होने चाहिए। जैसे हमने ऐड किया 2 + 2, तो ये क्या है, प्रेजेंट इनपुट है, और इसी के बेस पे हमें क्या मिल रहा है, आपका आउटपुट, दैट इज दी 4। यानी कॉम्बिनेशन सर्किट किस पे वर्क करता है या किस फिनोमिना पे वर्क करता है कि इसमें जो भी आउटपुट जनरेट होगा वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड होगा। नेक्स्ट हम इस यूनिट में आपके डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन सर्किट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज योर एडर एंड सबट्रैक्टर। उसको फर्दर हमने बाइफरकेशन पढ़ेंगे इसका, दैट इज योर हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। मैग्नीट्यूड कंपैरेटर में बेसिकली हम ये चेक करेंगे या बेसिकली हम ये कंपेयर करेंगे कैसे आपके दो बिट आपस में ग्रेटर हैं, इक्वल हैं या लेस देन है। उसके कई सारे वेरिएशन से डिपेंड करता है कि कितनी बिट के बीच में हम कंपैरिजन को कर रहे हैं। उसके बेसिस में 2 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है और नेक्स्ट है आपका 3 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर बेसिकली आपकी ऐसी डिवाइसेस होती है जो मल्टीपल इनपुट और सिंगल आउटपुट पे डिपेंड करती है। यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, कई सारे इनपुट में से एक आउटपुट डिसाइड करना पड़ता है, और वो कैसे डिसाइड होता है उसके लिए हम सिलेक्शन लाइंस और पूरा मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो डिफरेंट मल्टीप्लेक्सर जो आपके सिलेबस में है वो है आपका 4x1 मल्टीप्लेक्सर एंड योर 8x1 मल्टीप्लेक्सर। इसी का वाइस वर्सा होता है आपका डी मल्टीप्लेक्सर, यानी ये जस्ट अपोजिट काम करता है आपके मल्टीप्लेक्सर के। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका डिकोडर इनकोडर, फिर है आपका पैरिटी चेकर और जनरेटर, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोड कन्वर्टर। तो यहाँ बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम एक कोड कन्वर्टर से दूसरे कोड कन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल XS3 कोड से BCD कोड में, या BCD कोड से आपके XS3 कोड में, या आपके ग्रे कोड या XS3 कोड के बीच में कन्वर्शन। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, that is your unit number 3rd. Unit number 3rd is all about the sequential circuit. So here we can see from the block diagram that sequential circuits are basically those circuits whose output depend on the present input as well as the past आउटपुट। अब हमने यहाँ क्या बात की कि सिक्वेंशियल सर्किट क्या होता है, ऐसा सर्किट होता है जिसका आउटपुट उसके प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड होता है। अब हमने यहाँ क्या बोला, पास्ट आउटपुट, तो हमें इस पास्ट आउटपुट को कहीं स्टोर भी कराना पड़ता है। तो उसको स्टोर कराने के लिए जिस कंपोनेंट का हम यहाँ पे यूज करते हैं उससे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका मेमोरी एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के सिक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप बेसिकली आपका सिक्वेंशियल सर्किट का पहला टाइप है या फर्स्ट टाइप है जिसे हम लोग यूज करते हैं 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए। अब ये क्या करता है, एक बार में एक ही बिट का डेटा को स्टोर कर सकता है और इसकी वैल्यूज क्या होती है, 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट करती रहती है, इसलिए इसको हम लोग आपका बाइस्टेबल वाइब्रेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है आपका टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। कई तरीके की फ्लिप फ्लॉप्स हम पढ़ेंगे, जैसे आपका SR हो गया, JK फ्लिप फ्लॉप हो गया, T फ्लिप फ्लॉप हो गया एंड D फ्लिप फ्लॉप।
नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो इसमें है कन्वर्जन, कि कैसे हम एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी में हम फर्दर टॉपिक कवर करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल क्या होती है, इक्वेशंस क्या होती है, एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, स्टेट डायग्राम क्या होता है। स्टेट डायग्राम बेसिकली ये बताता है, या हम ये कह सकते हैं बिहेवियर बताता है किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट का। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे वो है आपका डिजाइन ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, यानी किसी भी सिक्वेंशियल सर्किट्स को अगर हमें बनाना है तो हमें क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करने पड़ते हैं, जिसकी हेल्प से हमारा एक सिक्वेंशियल सर्किट हम बना सकते हैं। Now your next slide is all about the unit number 4. Unit number 4 is registers and counter. अब इससे पहले हमने डिस्कस किया था सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया था हमारा फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या कर रहा था, एक टाइम पे एक ही बिट को स्टोर कर रहा था। तो अब हमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि स्टोरेज कैपेसिटी कम मिल रही थी। अब हमें डेटा को अगर लार्ज अमाउंट में स्टोर करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, रजिस्टर। तो बेसिकली रजिस्टर्स क्या होते हैं, हमारे ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं हमारी मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के। डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स भी हम पढ़ेंगे, जैसे कि आपका पैरेलल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, और आपका शिफ्ट रजिस्टर्स, बाइडायरेक्शनल रजिस्टर्स एंड योर पैरेलल लोड्स। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट यहाँ पे इस यूनिट में कवर करेंगे वो है आपका ऑल अबाउट द काउंटर्स। काउंटर्स बेसिकली आपकी ऐसी डिवाइस होती हैं जो क्या करती हैं कि कितने टाइम कोई इवेंट अकर कर रहा है उसको वो काउंट करती है। जैसे हम लोग बीसीडी काउंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, योर जॉनसन्स काउंटर, रिंग काउंटर। दिस इज ऑल अबाउट योर यूनिट नंबर 4. लास्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 5. यूनिट नंबर 5 इज मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेमोरी यूनिट क्या होती है। हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी चीज पे काम कर रहे हैं तो उसकी स्टोरिंग करानी पड़ती है। तो स्टोरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, आपका मेमोरी। तो बेसिकली इस यूनिट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि मेमोरी कितने तरीके की होती है, क्या क्या वेरिएशंस होते हैं आपके, कैसे उनको ऑर्गेनाइज कराया जा सकता है, आपके वर्चुअल मेमोरी क्या होगी, कैश मेमोरी क्या होगी। थैंक यू।